Good afternoon, everyone. This is Shubham Jaju. I am a UI developer in a Mini Orange. So let's start the session on exploring front-end vulnerabilities, the gateway to hacking. So about myself, I am a UI developer in Mini Orange, and I have exploring multiple UI web design trends and the web application securities. And just go to the next slide. So the key objective of the session is we can identify some common front-end vulnerabilities and and understand its exploitation techniques and threats which hackers can use or then the mitigations around the techniques and also catch some real world vulnerabilities which done. So let's start to the next slide. So why front-end security? Everyone is talking about the back-end security, the API security, the server security, but no one is talking about the front-end security. In past times, front-end is also the integrated with the back-end, like as you know about the JSP struts, they are integrated with the Java as well. But nowadays, there are multiple front-end applications like mobile applications, web applications, even the watch applications, and the future of VR also. So, so for depending on the data, so they decouple the architecture and introduce the front-end part and the back-end part, which is API as well. So front-end is also secured as well because there is also some loopholes, some vulnerabilities in the front-end as well. So let's start about the topic front-end vulnerability. So some real world attacks. The first one is the British Airways attack. In that attack, the someone inject the malicious script in the British Airways website and injects and get some uh, scripts and skim some payment data and which cause a loss of around 500 euro million. And the second attack is the Uber attack. In this attack, one of the Uber employees account is बेसिकली उबर एम्प्लॉय मतलब छोड़ के चला चुका था बट उसका अकाउंट अभी भी एक्टिव था एंड वन ऑफ एक अटैकर को उसका अकाउंट मिल गया सो उसने उसका अकाउंट फैच किया उसके सेशन हाईजैक किए एंड देन ही कैन एक्सेस द सर उबर्स एडमिन पोर्टल्स और द राइडर्स डेटा एंड ड्राइवर्स डेटा एज वेल सो इट कैन बी वेरी हार्म फॉर उबर एज वेल सो नेक्स्ट स्लाइड the global average data cost of data breach. So as you see in the chart, the after COVID, the data breach cost is increased by around 10%, which is around 4.88 million. So after the COVID, the most of the working people forces, corporate IT forces, are working as a remote. So it is easily accessible to attackers to access the servers, company servers, corporate servers, because they are on remote, not on the company internal servers, not on the company internal systems. So, and this data average cost is including all the data like total operational cost, the cost after the covering post breach, and the cost for the uh, help desk regulations to resolve the issues for customers. So let's start. So there are some common types of attacks. You know about some attacks. You know about some names like cross-site scripting, cross-site request forgery, the server-side request forgery, the server-side injection, API data leaks and some common attacks. So we मतलब अभी अपन एक एक अटैक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम अटैक्स एक्सप्लोर करते हैं बट अगर अटैक्स एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप ये साइड में बार देख रहे हो तो इस बार में दिख रहा है कि जो मेजोरिटी ऑफ डेटा लीक्स है या मेजोरिटी ऑफ डेटा है वो क्रेडेंशियल्स के थ्रू जा रहा है या फिर वेलनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होने की वजह से आ रहा है तो क्रेडेंशियल्स मेजरली कहाँ से लीक होते हैं या तो वो कुकी हाईजैक करते हैं या वो टोकन हाईजैक करते हैं या वो सेशन हाईजैक करते हैं सो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए फ्रंट एंड पे एक हाँ गेट होना जरूरी है आपने जैसे अपने अपन भी घर में अगर लॉक वॉक लगाते हैं तो सिक्योरिटी गेट कुछ तो रखते हैं ना सो दैट चोरी नहीं हो सो मेजर जो फ्रंट एंड का जो मेन अटैक का गेटवे है वो यही है कि क्रेडेंशियल्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीच हो रहा है सो लेट्स स्टार्ट द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नेम से ही पता पड़ रहा है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि कोई दूसरी साइट से यूज़र या अटैकर है
जो हमारी साइट पे अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स डाल रहा है और हमारे साइट पे सेशन हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुकी स्टील करने की कोशिश कर रहा है. So let's check the block diagram for the cross-site scripting. So in this block diagram, you see that the attackers inject the website malicious script. So this script are injected in the website. Now the user अब सब कोई ना कोई वेबसाइट खोलते हैं, लॉगिन वगैरह करते हैं. तो मैंने भी गया किसी XYZ वेबसाइट पे और लॉगिन किया, बट मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किसी अटैकर ने कोई स्क्रिप्ट डाल रखी है. अब अटैकर ने स्क्रिप्ट डाल रखी है, मैंने लॉगिन कर लिया. जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो वो अटैक की जो कुकी है या जो सेशन है, अगर वहाँ पे सिक्योर नहीं हुई, वहाँ पे कुकी स्ट्रिक्ट नहीं हुई है, तो वो अटैकर कुकी हाईजैक कर लेगा एंड देन ही कैन क्रिएट अ सेशन ऑन फ्यूचर एंड स्टील ऑल द डेटा ऑफ द यूजर. सो लेट स्टार्ट द XSS अटैक डेमो. सो हम एक बार डेमो देखते हैं कैसे ये चीज़ होती है. तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट, एक मेरा UI है जिसमें मैंने लिखा है वेलकम टाइम जोन और एक इनपुट बॉक्स है जिसमें एक सबमिट बटन है. यहाँ पे मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे बेसिकली मतलब प्लेस होल्डर में एक नेम डालना है या कुछ भी पैरामीटर डालना है. मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा नेम डाला. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो URL अपडेट हुआ है जिसमें क्यूरी पैरामीटर है नेम इक्वल्स टू शुभम. अब ये तो एक नॉर्मल यूजर था, उसको पता था कि मेरे को नेम डालना है, तो उसने नेम डाल दिया और सबमिट कर दिया. बट अटैकर के लिए ये एक नॉर्मल इनपुट नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें डालने की ट्राई करेगा. जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट टैग खोल रहा हूँ, यहाँ पे एक नेटवर्क टैब भी खोला है मैंने, और मैंने एक इमेज टैग कॉपी किया है. अभी मैं वहाँ पे इनपुट में जहाँ पे नेम डाला था, वहाँ पे एक इमेज टैग का इनपुट, इमेज टैग की वैल्यू डालूंगा एंड देन आई सबमिट द टैग. अब जब मैंने टैग सबमिट किया तो कुछ रिक्वेस्ट गई है. तो पहली रिक्वेस्ट तो मेरी वेबसाइट की थी जो नॉर्मल क्यूरी पैरामीटर के साथ थी. बट जो लास्ट रिक्वेस्ट तुम देख रहे हो 405 रिटर्न हो रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट है एक. जो ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी ये मेरे इमेज टैग के अंदर थी. तो ये अटैकर रिक्वेस्ट थी. अगर मैं इस रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करता हूँ, सो यू कैन सी दैट कि हाँ देयर इज अ कुकी हाईजैक, मतलब अटैकर ने वो कुकी अपने पास कैप्चर कर ली है. ये एग्जाम्पल कुकी थी जो नॉर्मली मैं सेशन इनिशिएट करते टाइम बनाता हूँ. तो एक बार अपन कोड को एक्सप्लोर करते हैं. ये मेरा एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन का कोड है. यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्रिएट पोस्ट करके फंक्शन बनाया जो क्या करता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट करता है, और यहाँ पे एंड देन ये एक फंक्शन है जो से मैं इनपुट पैरामीटर फेच कर रहा हूँ. तो ये इनर HTML में यहाँ पे डायरेक्टली मैंने पास कर दिया है. मैंने किसी भी तरह के यहाँ पे कोई भी अभी तक कुछ पार्सिंग वार्सिंग नहीं करी है. तो क्या आप मुझे बता ये एक टाइप का अटैक हो गया. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें भी सिमिलर टाइप का केस है कि हम एक कुछ पैरामीटर टैग डालेंगे. तो यहाँ पे भी सेम ही है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेम डालता हूँ एंड देन सबमिट करता हूँ, तो ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट जा रही है जिसमें अभी तक आपने अगर देखा हो इंस्पेक्ट टैग में तो ऑलरेडी एक मेन वेबसाइट की रिक्वेस्ट जा रही है. उसके अलावा मेरा फैव आइकन लोड हो रहा है और एक WS रिक्वेस्ट जा रही है जो नॉर्मली हर वेबसाइट पे जाती है. अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक कोई इशू नहीं है. अब मैं यहाँ पे फिर से कोई एक HTML टैग डालता हूँ. लेट से मैंने ये अपना एक बार टैग कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ. यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे सब रिक्वेस्ट क्लियर कर लिया. अब मैं सबमिट करता हूँ बटन. तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक और नई रिक्वेस्ट आई है empty.gif करके 404 मिल रहा है. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सेशन बाईपास कर रहा हूँ मेरे किसी अनदर एंड पॉइंट पे जो मेरे स्क्रिप्ट मेरी वेबसाइट का एंड पॉइंट है भी नहीं. बट आपको ये पता भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको लगेगा ये शायद इस वेबसाइट की कोई API होगी या वेबसाइट का ही कोई डेटा होगा. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कैसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमारे कुकी हाईजैक कर सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम और इस रिक्वेस्ट पे कुकी भेज चुके हैं. और ये अगर आप हेडर देखो इसका, तो ये रिक्वेस्ट किसी 127
वल्नरेबिलिटी empty.gif से आ रही है, जबकि ये ऐसी कोई रिक्वेस्ट मैंने ऐसा कोई gif मेरे सर्वर में या मेरे कोड में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। लेट्स से ये तो हो गया कि एक नॉर्मल कैसे अपन हाँ जी हाँ मतलब किसी दूसरी रिक्वेस्ट पे अपन कुकी हाईजैक कर सकते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल है, तो मैं इस एग्जांपल में इसमें भी सेम ही है, अभी अपन को यूआई सेम दिख रहा है, हम एक नेम टैग पैरामीटर यूज करेंगे। वहाँ पे सेम अगर मैं नॉर्मल यूजर की तरह जाऊँ तो सेम वही होगा, शुभम डालूंगा एंड देन मेरा क्यूरी पैरामीटर में मेरा नेम यूआरएल में शो हो जाएगा। बट नाउ अटैकर्स की माइंड ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वहाँ पे वो नेम टैग पैरामीटर नहीं डालेगा, वो यहाँ पे एक फॉर्म डालेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट में एक फॉर्म डाल दिया और मैंने सबमिट कर दिया। अब मैं कभी भी इस वेबसाइट को खोलूंगा तो मुझे फॉर्म दिखेगा, क्योंकि अटैकर्स ने यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी है। तो मुझे लगेगा कि मुझे लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, अब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मुझे एक अलर्ट पॉपअप आ रहा है, वैसे बाय द वे अलर्ट पॉपअप में लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन यू एंटर्ड ऑन दिस पेज विल बी सेंट ओवर इनसिक्योर कनेक्शन। ये आजकल के मॉडर्न डे ब्राउजर्स की उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिए सो दैट कि क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज थोड़े कम हो। बट पास्ट डेज में जो ब्राउजर्स यूज़ करते थे उनमें डायरेक्टली पॉपअप नहीं आता था। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू किया तो मेरा सेशन हाईजैक हो गया है और मैं किसी और वेबसाइट पे डायरेक्ट हो गया। इवन अपन को ऐसा लगेगा कि हम लॉगिन होने के बाद उनके डैशबोर्ड पे चले गए, बट ऐसा नहीं है। अगर अपन इस रिक्वेस्ट पे देखें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है fake.php, जबकि ये पेज मेरा है भी नहीं और ये example.com मेरा है भी नहीं। तो ये तो अटैकर साइड का है। तो कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है और किस तरीके से हम अगर मतलब कैसे हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे इनपुट फील्ड्स के अंदर काफ़ी सारे इनपुट्स के ऑप्शंस होते हैं और हम चेक नहीं करते कि वहाँ पे वो सिक्योरिटी है कि नहीं है, रिक्वेस्ट सही जा रही है कि नहीं जा रही है। और इस तरीके से हम हाईजैक हो जाता है या हमारा सेशन हाईजैक हो जाता है या कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी रहती है हमारे कोड में, तो अटैकर्स अटैक कर लेते हैं। कोई एनीवन यहाँ पे कोई है जो बता सकता है कि इनको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? हाँ, मतलब काफ़ी लोगों ने कॉमन आंसर दिया, इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन तो एक ऑप्शन है, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे मिटिगेशंस हो सकते हैं। लेट्स चेक द मिटिगेशंस। द मिटिगेशंस, पहला जो सबने कॉमन दिया, वैलिडेट इनपुट फॉर्म्स। दूसरा, ब्लॉक HTML इनपुट्स। तो HTML हमें हमें मेजरली स्क्रिप्ट्स जो होती है वो मेजरली HTML टैग होती है, लाइक स्क्रिप्ट टैग हो सकता है, इमेज टैग हो सकता है या कोई भी एंकर टैग हो सकता है। तो हमें वो प्रिवेंट करना है। देन उसके बाद सेफ कुकीज़ क्रिएट करनी है। जैसे हमने देखा था कि पहले 2 अटैक में कैसे कुकी बाईपास हो गई और कुकी हाईजैक हो गई। बट अगर यहाँ पे अगर हम कुकी में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लगा लेते हैं, जैसे HTTP ओनली कुकी हो गया या स्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो अब कुकी को प्रिवेंट कर सकते थे। इसके अलावा हमें रेगुलर बेसिस पे हमारा फ्रंट एंड कोड स्कैन करना चाहिए, लॉगिंग करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, कैसा आ रहा है। इसके अलावा हमारे वेब एसेट्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा था तो मैंने एक empty.gif पे रिक्वेस्ट गई थी सेकंड एग्जांपल में। तो उस empty.gif में बेसिकली ये था कि अटैकर ने एक इमेज यूआरएल डालने की कोशिश की, बट वो इमेज मेरे सर्वर पे थी नहीं। तो वो इमेज अगर मेरे सर्वर पे थी नहीं तो मैंने उसमें एक कोड डाल रखा था, ऑन एरर इमेज के ऑन एरर पे मेरा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब अटैकर को पता है ऐसी इमेज नहीं है, तो उसको पता है कि उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही उसका कोड एग्जीक्यूट हुआ, कुकी या सेशन जो भी है वो हाईजैक हो गया। ये जो मेजर एक्सेस अटैक को मिटिगेट करने के कुछ पॉइंट्स है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। द एक्सेस अटैक फिक्स डेमो। तो अभी तक हमने अटैक देखा था, बट इनकी मिटिगेशंस भी एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे इनको मिटिगेट कर सकते हैं। लेट्स चेक द डेमो। सेम यूआई था पहले वाला, बस मैंने मिटिगेट वाला कोड है वो थोड़ा अनकमेंट किया सो दैट कि हम उसका फिक्स वापस देख सके। अभी मैं यहाँ पे सिंपल वही नॉर्मल यूजर की तरह अगर शुभम डालूंगा तो क्यूरी पैरामीटर में शुभम जाएगा एंड देन यूआरएल अपडेट होगी। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे इमेज टैग डालूंगा तो क्या होगा? लेट्स
मैं यहाँ पे नेटवर्क लॉग क्लियर कर लेता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में अपना इमेज टैग डाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आई थिंक देयर विल बी सम इशू इन द कोड, नो प्रॉब्लम। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप यहाँ पे कोड दिख रहा होगा आपको, तो पहले मेरा ये वाला लाइन था जो कमेंट था 38 नंबर लाइन, तो यहाँ पे मैंने मिटिगेट किया है, जिससे मैं क्या, ओ माइट बी सम इशू, ओके आई एम नॉट चेकिंग द exact variable, so I have to update the variable. If I update the variable, then it will work. आई थिंक माइट बी सम इशू, नो प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो 38 नंबर लाइन पे है, वो मैंने मिटिगेट किया है अपना कोड। सो मैंने क्या किया है कि HTML टैग जो भी है उनको रिप्लेस किया है, उनको एस्केप किया है। एक तरीका ये है। देन अगर सेकंड मेथड देखे, तो सेकंड मेथड अपने पास ये होता है। हाँ, तो सेकंड मेथड में हमने देखा कि अभी हमने उस कोड को मिटिगेट कर दिया है, तो अभी सिर्फ 3 रिक्वेस्ट जा रही है, अभी अटैकर साइड की रिक्वेस्ट इंजेक्ट नहीं हुई है। सो ये एक मेथड था जो पहले हमने देखा था, जिसमें हम HTML एस्केप कर सकते थे वो। और दूसरा एक और मेथड है कि हम डॉम बेस्ड कोड्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं, लाइक डॉम प्यूरिफाई डॉट सैनिटाइज, और यहाँ पे मैंने अपना इनपुट सैनिटाइज किया। सो इसमें जितनी भी HTML थी वो सब एस्केप हो गई, एंड देन फिर मेरे इनपुट के पास गई। सो here we see the how to fix the XSS demo. Then go to the next slide. क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सो द itself द नेम, मतलब इसके नाम में ही पता पड़ रहा है कि ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है। मतलब कि सेम कि हम किसी भी दूसरी साइट से आएंगे, कोई भी दूसरी साइट से। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता ना मोबाइल पे ईमेल आता होगा, प्रमोशनल ईमेल, कि यू गॉट iPhone, यू गॉट 1 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपीज़ यू विन। सो वो एग्जाम्पल जो है वो इसी टाइप के अटैक्स का है। सो अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें, सो हाँ, इसमें बेसिकली क्या होता है कि यू विल गेट रिक्वेस्ट फॉर, यू अटैकर विल सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर अ फंड ट्रांसफर, लाइक इन अ प्रमोशनल ईमेल, लाइक यू गॉट 10 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ रुपीज़, एंड देन you accidentally, or maybe not accidentally, you click on that in excitement कि मैं 1,000 करोड़ रुपए जीत गया, मैं 100 करोड़ रुपए जीत गया, and this will leads to your bank website. In parallel, there is a session on the bank website, and an attacker have a post request or a get request API call in that link, which links attacker send, जो attacker ने जो link send की उसमें, है ना। सो हमने उस लिंक पे क्लिक कर दिया और हमारा बैंक वेबसाइट दूसरे टैब में या दूसरे ब्राउजर में एक्सेसिबल है। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही हमने लिंक क्लिक किया, तो उसके बाद वहाँ से एक API कॉल हुई बैंक वेबसाइट को, और बैंक ने क्या किया, उस अटैकर के अकाउंट में जितने भी रुपए उसने रिक्वेस्ट किए वो ट्रांसफर हो गए, और आपको एकदम से पता भी नहीं पड़ेगा, आपको बाद में पता पड़ेगा कि पैसे गए कहाँ पे। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। सो लेट्स चेक द डेमो फॉर, ये ऐसा एक ईमेल आता है आपको कि वेलकम टू पोस्ट ड्रॉप, और कुछ ऐसा होता है कि आप साइन अप करो, और ऐसा कोई प्रमोशनल ईमेल आता है। अब मैं यहाँ पे एक इंस्पेक्ट टैब खोल रहा हूँ, फिर से नेटवर्क टैब। सो यहाँ पे मेरा एक बैक एंड एप्लीकेशन भी है और एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, बट फ्रंट एंड एप्लीकेशन में मेरा एप्लीकेशन नहीं है, ये अटैकर का UI है। जो आपको ईमेल या व्हाट्सएप या कहीं पे भी लिंक आएगा, उसके अंदर ये ईमेल का UI लोड होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो एक्साइटेड में यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं क्लिक किया और आप देख रहे हो कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब देखता हूँ, सो
सो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया और ये एक गेट रिक्वेस्ट कॉल है जिसमें वो तो ना कोई भी बैंक की गेट रिक्वेस्ट हो सकती है। तो उसमें आपका देखो अकाउंट आईडी और अमाउंट और मेरा लोकल होस्ट का जो मतलब बेसिकली ये मेरा बैंक का सर्वर था जो मैंने बनाया था और वो यूआई जो था वो अटैकर साइड का था। और जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया और आप बैंक की रिक्वेस्ट पे कॉल हो गए एंड अटैकर ने आपका जितना भी अमाउंट था ले लिया। इफ़ अगर आपका बैंक का सेशन एग्जिस्ट करता हो, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होता तो माइट भी आप बच जाते। सो ये गेट रिक्वेस्ट थी। तो पहला यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कंसेप्ट है सेम। यहाँ पे आपको एक यूआई दिखेगा जहाँ पे कुछ प्रमोशनल ईमेल्स होंगे, बट नाउ इन दैट केस देर इज नॉट अ गेट रिक्वेस्ट, देर इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन, मतलब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो सेम पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होती है और हम बैंक की वेबसाइट पे वापस रिडायरेक्ट होते हैं और एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप देख सकते हो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। सो ये इस CSRF अटैक के थ्रू कैसे आपका अकाउंट का सेशन है वो हाईजैक हो सकता है और पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर CSRF अटैक। सो लेट्स एनीवन हैव mitigation around this attack? Any? Awareness is the one thing for an end user, but for the developer side, there is any mitigation? नहीं नहीं। हाँ, वहाँ से कोई आवाज आई है क्या? हाँ, सो दिस वन इज द प्रिवेंशन। देयर इज CSRF टोकन। सो हमें जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो हमें एक टोकन जनरेट होता है। इवन कोई भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो टोकन के थ्रू फॉर्म सबमिट होना चाहिए। So the mitigation around this attack is anti-CSRF tokens or the same site cookie. The same cookie hijacking is here as well, because the session hijack on front end is from cookie or authentication tokens. So they are in मतलब वो ब्राउजर के अंदर कुकी स्टोरेज में या कुकी में होते हैं। आपने देखा होगा कि आप कई सारी वेबसाइट्स पे जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकी, डिनाई ऑल कुकी। तो वहाँ पे वो कुकी में अपना सेशन सिक्योर करते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम साइड कुकी और एंटी CSRF टोकन ये मेजर मिटिगेशन है इसके। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। द फिक्स CSRF टोकन का हमने देख लिया फिक्स है। तो कैसे फिक्स होगा ये? तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा है कि जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो हमें एक CSRF टोकन भेजना जरूरी होता है। जो ये टोकन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि ये यूजर के सेशन के ऊपर एक डायनेमिक टोकन होता है। सो ये अटैकर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये टोकन जो होता है वो हमारे क्लाइंट पे ही बनता है और इसको वैलिडेट करने के लिए अपना सीक्रेट जो होता है वो सर्वर साइड पे होता है। तो अटैकर कभी भी इस टोकन को जनरेट नहीं कर सकता। सो यहाँ से अपन बच सकते हैं ये सेम चीज़ होने से। सो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मेरी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है जो मैंने पहले भी अपन ने हमने इसके CSRF अटैक में देखी थी कि मैंने डायरेक्टली विदाउट एनी वैलिडेटेड टोकन मैंने डायरेक्ट फॉर्म सबमिट कर दिया था और वो फॉर्म सबमिट हो गया एंड देन जो भी कुकी या जो भी ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो गया था। ना मैंने यहाँ पे अपनी कमेंट अनकमेंट कर दिया है एंड रीस्टार्ट करता हूँ मैं अपना सर्वर। तो मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया, वापस मैं सेम यूआई पे आ गया हूँ। अभी भी हमें सेम ही है कि हमारे पास प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह कुछ भी आते हैं तो उसमें एक बटन होता है, वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। फॉर नाउ एग्जांपल मैंने अभी इसको क्लिक किया है, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे एरर दिख गया CSRF टोकन वैलिड अनवैलिड, वैलिडेशन फेल्ड। सो यहाँ पे आप इस अटैक से बच गए, अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने से बच गए। अगर ये वल्नरेबिलिटीज हम नहीं ध्यान रखेंगे तो बैंकिंग वेबसाइट्स और इवन जो सेंसिटिव वेबसाइट्स होती है वहाँ पे हम इन टोकन्स के थ्रू सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं। सो दिस इज द डेमो फॉर द फिक्स। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। So the next attack is server-side JavaScript injection. So JavaScript injections है। So उसमें basically
हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट में कुछ मेलिशियस कोड लिखते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं अटैकर की वेबसाइट पे. सो दिस इज द डायग्राम फॉर द जावा स्क्रिप्ट इंजेक्शन वेयर हैकर कैन सेंड सम पेलोड टू द सर्वर, सेंड पेलोड टू द क्लाइंट, और क्लाइंट बिना चेक किए, बिना किसी वैलिडेशन के वो पेलोड सर्वर को भेज देता है. और सर्वर भी अगर बाय चांस नहीं चेक करता है तो सर्वर पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है कोड, और जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो वो अपना डीबी या फिर कोई भी सर्वर एक्सेस यहाँ का सेंसिटिव डेटा फेच कर सकता है. सो ये है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन का ब्लॉक डायग्राम. सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. The demo for demo for the code. So actually the real demo is not possible for that, but we have some code snippets. Like first the SQL NoSQL injection. So in that injection, if you see the input username admin and password, there is some SQL query. So in the server, we directly pass the SQL query input in our server. So जैसे ही मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास किया तो यहाँ से जितना भी मेरे पास डेटा था SQL से वो फैच हो गया. देन द सेकंड वन इज रिसोर्स एग्जॉशन. आपने डॉस अटैक तो सुना होगा, डिनायल ऑफ सर्विस. सो ये बेसिकली उस टाइप का अटैक है जिसमें क्या किया कि हमने जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट डाला और जिस ऑब्जेक्ट में हमने डेटा डाला, अब डेटा के साथ आप देखोगे ए डॉट रिपीट और करीब ये अराउंड 1000 करोड़ टाइम्स कुछ भी हो सकता है. बट अगर आप इसको 1000 करोड़ टाइम्स अगर इसको आप रियली ब्राउजर पे फेच करने की कोशिश करोगे तो ये इतना बड़ा जेसन होगा, लगभग 3 to 4 MB का. सो इतना बड़ा जेसन अगर आपके सर्वर पे जाता है तो मे इट माइट बी चांसेस ऑफ पॉसिबल कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो जाए, आपका सर्वर क्रैश भी हो सकता है. सो इस अटैक के थ्रू अगर आपने बिना पार्ट्स किए अगर आपने डायरेक्टली अपने सर्वर को कॉल कर दिया तो. सो द थर्ड वन इज डी सीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी. तो इन दैट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी कि हमने यहाँ पे डेटा देखा और यहाँ पे कुछ एरे में नंबर्स है और हमने यहाँ पे जेसन को डायरेक्टली पार्स किया और बफर कर दिया. तो इसमें भी सेम टाइप का है कि अगर हमने जेसन को प्रॉपरली पार्स नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया, तो वो हमारे सर्वर को डायरेक्टली कांटेक्ट होगा और वहाँ से सर्वर क्रैश हो सकता है, सर्वर का इंपॉर्टेंट डेटा लीक हो सकता है, सेंसिटिव डेटा, इवन डेटाबेस का भी. So this is the demo for that. So these are the mitigation for the SSI injection. The first one is input validation. The second is avoid eval and similar function. मतलब हम जावा स्क्रिप्ट में अगर कोड लिखते हैं या इनपुट से कोई फैच वैल्यू फैच करते हैं तो डायरेक्टली हमें जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन में पास नहीं करनी चाहिए. पहले हमें अपने एंड पे पूरा प्रोसेस वैलिडेट करना चाहिए कि वो सही है कि नहीं. उसके बाद हम कोई भी जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के थ्रू जा सकते हैं. यूज सिक्योर टेम्पलेट इंजन. हाँ, अभी के टाइम में हम काफ़ी सारे टेम्पलेट इंजन आ चुके हैं. जैसे रिएक्ट के अंदर JSX टेम्पलेट यूज़ करते हैं, जैसे लारावेल में ब्लेड टेम्पलेट यूज़ होता है, स्प्रिंग बूट में थाइमलीफ यूज़ होता है. तो हम उसके थ्रू भी ना ये चीज़ प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सिक्योर डेटा हैंडलिंग जैसे ऑथराइजेशन टोकन पास करना API में, इनेबल लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग. तो हम प्रॉपर लॉग्स ले ताकि हमें पता रहे कि इनपुट साइड से क्या क्या वैलिडेशन, क्या क्या इनपुट्स आ चुके हैं, तो वहाँ से हम प्रॉपर लॉग कर सकते हैं. So these are the mitigation to prevent from JavaScript injection attack. So the fix for the fix for the attack is कि हम यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है इनपुट वैलिडेशन का, अटैक का फिक्स लिखा है. सो हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट जैसे ही आया हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी से, तो हमने उसको पहले वैलिडेट किया. ये हमारा एक वैलिडेट फंक्शन है जो वैलिडेट करता है. अगर वैलिडेटेड सही नहीं हुआ तो उसने डायरेक्टली 400 रिस्पॉन्स भेज दिया, सो दैट कि वो सर्वर तक पहुँचे ही नहीं, वो क्लाइंट पे ही चेक हो जाए. द नेक्स्ट इज इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन. सो इसमें क्या किया कि हमारे पास कुछ बॉडी का डेटा आ रहा है, जेसन डेटा आ रहा है, और उस डेटा को हमने यहाँ पे देखा और देन उसको हमने पार्स किया. तो पार्स करने के बाद हमने पहले वो चेक किया कि वैलिड डेटा है कि नहीं है. अगर वैलिड डेटा है तो हम बिजनेस लॉजिक पे जाएंगे, अगर वैलिड डेटा नहीं है तो हम सेम 400 रिक्वेस्ट भेजेंगे, 400 रिस्पॉन्स भेजेंगे कि इनवैलिड डेटा है. सो इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम इट कैन बी प्रिवेंट डेटा टू मिटिगेट अटैक. टू इट कैन मतलब ये मिटिगेट कर सकता है हमारे अटैक को बचाने के लिए. So this one is the last attack of the session, and it is one of my favorite attack, the clickjacking attack.
in that attack, you have seen some websites where Google Ads or other another websites are in iframes. Anyone have seen that types of websites? I think everyone has. So let's check the block diagram. So there is a block diagram. So this is my website a.com, and in my website there is a ads.com and there is a b.com in iframe. So might be chances that ki be ads.com steal your cookies, even steal your key event captures, or steal all the data from a.com if you are not prevent some mitigation, sir. So it might be chances ki b.com can also do. Now the mitigation against the clickjacking. So we have to implement content security policy headers with some frame ancestors. We have to implement X-frame options to not mitigate the parent window data from the iframe, and we have to frame breaking option as well. So when we next go to the clickjacking fix demo, so here is a fix that first fix you have already seen that browser is preventing to the from clickjacking attack, and the second fix is you have to pass some the code which is written here, the content security policy header and the frame ancestor, which of the frames are allowed in the our website or which of frames are not allowed, and you can add some cookie so that your cookie could not be leak on the iframes or on the other websites, which is like ads website as well. So now let's go to the next slide. The major prevent attacks for the front end. So हमने अभी तक अटैक भी देखे, काफ़ी सारे प्रिवेंट भी देखे, बट हम जनरल प्रिवेंशन की बात करते हैं तो काफ़ी सारे प्रिवेंशन हो सकते हैं, जैसे कि एनफोर्स करना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज को वेबसाइट्स पे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना, सेशन मैनेजमेंट करना, हम प्रॉपर JWT टोकन्स यूज़ करना, प्रॉपर उनकी एक्सपायरी चेक करना, एंड द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी हेडर्स इम्प्लीमेंटेशन. तो अभी हमने देखा कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के हेडर्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और उसके अलावा रेफरल पॉलिसीज होनी चाहिए, रेफरल पॉलिसी होनी चाहिए, और उसके अलावा काफ़ी सारे क्रॉस ओरिजिन पॉलिसीज़ होनी चाहिए, सो दैट हम चेक कर सके कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो अटैकर साइड से नहीं आ रही है, वो हमारी मेन साइड से आ रही है. इसके अलावा काफ़ी सारी मतलब और भी सारे प्रॉपर ऑथराइजेशन हेडर यूज़ करना, एक्स कंटेंट ऑप्शन हेडर यूज़ करना, तो मल्टीपल टाइप के हेडर से अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं. देन सिक्योर डेटा हैंडलिंग, तो यूज़र वैलिडेट ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. तो सेंसिटिव डेटा, और इसमें देख सकते हैं कि हमें लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डेटा नहीं रखना चाहिए मेजरली. सो देयर इज़ अ केस स्टडी स्लाइड्स वेयर वी कैन चेक सम रियल वर्ल्ड केस स्टडीज. सो देयर इज़ अ Citibank अटैक. सो इन दैट अटैक द Citibank डेवलपर्स ने APIs बनाई थी फॉर्म पोस्ट की, और उसमें उन्होंने बताना कोई भी टोकन या कोई भी तरह की ऑथेंटिकेशन नहीं डाल रखा था. तो विदाउट यूजिंग द ऑथेंटिकेशन उन्होंने API कॉल करी लाइक CSRF अटैक, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रिडिक्टेबल अकाउंट नंबर थे जो कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता था, और यूजिंग द अकाउंट नंबर उन्होंने डेटा पूरा फेच कर लिया था. और इसका सॉल्यूशन Citibank ने क्या किया कि अकाउंट बैंक्स नंबर की जगह पे उन्होंने UIDs डाली और सभी एंड पॉइंट्स को वैलिडेट किए. और द नेक्स्ट केस स्टडी इज टिकट मास्टर अटैक. सो इन दिस केस स्टडी अगर हम देखेंगे तो टिकट मास्टर का जो कस्टम सेशन हाईजैक हुआ था इंटरनल सिस्टम में, क्योंकि उनके वहाँ पे वेब सिक्योरिटी नहीं थी, और उन्होंने फिर इसके सॉल्यूशन में रेगुलर पैचिंग करी और सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एनहेंस किया. सो there is any question about my session? So thank you everyone for attending my session.